गुड। लास्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, राइट? सो आज एक और देखेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में। एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यूजुअली हम एक फंक्शन दिया तो उसको x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल आपको दो फंक्शंस मिलेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, एक फंक्शन है u which is sin x. U is a function of x. V is also a function which is cos x. Question है differentiate sin x with respect to cos x. Differentiate sin x with respect to x जो है वो आपको पता है. So how do you differentiate sin x with respect to cos x? So इसमें हम क्या करेंगे, sin x को u मान रहा हूँ, cos x को मैं v मान रहा हूँ. So differentiate sin x with respect to cos x का मतलब है d of sin x by d of cos x. Differentiation of y with respect to x का मतलब dy by dx. सही? Differentiation of y with respect to x. Differentiation of sin x with respect to cos x. d of sin x by d of cos x. So इसमें हम क्या करेंगे, d of sin x को मैं u मान रहा हूँ, cos x को v मान रहा हूँ, so du by dv चाहिए. So du by dv can be written as du by dx by dv by dx. ऊपर नीचे dx dx cancel हो जाएगा. u is a function of x, v is a function of x. सही है कि नहीं? So u को with respect to x में differentiate कर सकता हूँ, v को भी x के साथ differentiate कर सकता हूँ. So what is du by dx? d of sin x by dx cos x हो जाएगा. u अगर sin x है तो what is du by dx? d by dx of sin x which is equal to cos x. V is cos x. So what is dv by dx? d by dx of cos x, which is minus sin x. So answer है minus cot x. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सिंपल लग रहा है? So simply इतना है. Concept is du by dv, differentiation of u with respect to differentiation of u with respect to v का मतलब du by dx by dv by dx. Clear है? So example again, differentiate sin square x with respect to e power cos x. कर सकते हैं? Differentiate tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse x. Tan inverse of 2x by 1 minus x square with respect to sin inverse of 2x by 1 plus x square. 3 क्वेश्चन आपको करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? फर्स्ट वाला कर सकते हैं? सिंपली क्या करना है, डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय डी ऑफ ई पावर कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर
cos x. That is equal to sin square x का differentiation is something square 2 times something into sin x का differentiation is cos x divided by e power something का differentiation e power something here and cos x का differentiation minus sin x. तो sin x cancel हो गया minus 2 cos x by e power cos x. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर? सेकेंड वाला डायरेक्टली करेंगे या कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे? ये तो ऑलरेडी देखे है ना आप लोग. इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, राइट? सो बिफोर डिफरेंशिएटिंग आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करिए. देखिए, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स. सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? कुछ आइडिया है? रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है? x is equals to tan theta. हाँ, so let x is equal to tan theta. So u is equal to tan inverse of root of 1 plus x square. Root of 1 plus tan square theta is secant theta minus 1 by tan theta. सही है क्या नहीं? That is equal to tan inverse of secant theta के प्लेस में क्या लिख सकते हो? 1 by cos theta. पूरा सिंप्लीफाई किया तो 1 minus cos theta by sin theta हो जाएगा. एक cos theta एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, राइट? Which is equal to tan inverse of 1 minus cos theta को क्या लिख सकते हैं? 2 sin square theta by 2 by sin theta को 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 2 x sin theta by 2 x sin theta by 2 कैंसिल हो जाएगा. So tan inverse of क्या होगा? Theta by 2 total. Tan theta by 2, right? Tan inverse simply theta by 2 हो जाएगा. Okay? Okay or not? So v is equal to tan inverse of x. इसमें भी आप x equal tan theta पुट किया तो v is equal to what? Tan inverse of tan theta. इसका मतलब ये क्या होगा? थीटा हो जाएगा. ओके? u को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख लिया, v को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख लिया. सो व्हाट इज du by dv? इस बार du by dx by dv by dx लिखेंगे या du by d theta by dv by d theta लिखेंगे? u and v both have been converted in terms of theta. सही है क्या नहीं? So मैं क्या करता हूँ? du by d theta by कर सकता हूँ. So u क्या है? थीटा बाय 2. सो डी बाई डी थीटा का क्या होगा? ऊपर हाफ होगा, नीचे dv by d theta is 1. So effectively half will be the answer. Clear है क्या नहीं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज आप इसमें कर सकते हैं. फर्स्ट u is equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square. v is equal to sin inverse of 2x by 1 plus x square. दोनों को मैं ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो लेट x is equal to क्या पुट करेंगे? tan थीटा पुट करेंगे इसमें भी.
सो u क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा हो जाएगा. सो सिंपली इट विल बिकम Yes. 2 थीटा. समझ रहे? अगर v को भी x के प्लेस में tan थीटा पुट किया था, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा. सो ये भी 2 थीटा है. सो du बाय dv क्या होगा, du बाय d थीटा बाय dv बाय d थीटा. सो 2 थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 2, नीचे भी 2. सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. नोट किया? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. डिफरेंशिएट sin cube x with respect to cos cube x. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 by x with respect to sin inverse of 2x by 1 plus x square. ये दोनों क्वेश्चंस करिए. दोनों क्वेश्चंस करके पर अपना नोट्स का स्क्रीन शेयर कर लीजिए. देखता हूँ. किसी का हुआ बेटा? हाँ सर, हो गया. फर्स्ट का आंसर कितना आया? Minus cot x. ओके गुड. सेकंड का 1/4. 1 बाय 4. एक बार दिखाइए, आपका वर्किंग दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके.
ठीक है बेटा, सही है, गुड। शांतनु आपका so next topic is derivatives of parametric functions. ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब है, so usually functions y is equal to f of x फॉर्म में होगा. y will be the dependent variable, x will be the independent variable. We'll have y in terms of x. सही है. So parametric functions में क्या होगा, both x and y are dependent variables. x भी dependent है, y भी dependent है in an independent variable theta. So x will also be a function of t और theta कोई भी एक पैरामीटर, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं. y is also a function of t. यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं. So x also depends on t, y also depends on t. इसका मतलब effectively x and y एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. But it is not a direct relation, it is an indirect relation in variable t. t एक ब्रोकर जैसा है. ठीक है, x and y दोनों से कांटेक्ट रखते हैं. ठीक है, दोनों से काम करते हैं. So effectively indirectly x will depend on y. समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, where x is equal to a times t plus sin t and y is equal to a times 1 minus cos t. X is equal to a times t plus sin t, y is equal to a times 1 minus cos t. Find dy by dx. ठीक है, सो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जैसा हम वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर डिफरेंशिएट किया. Here x is a function of t, y is a function of t. So dy by dx को आप लिख सकते हैं dy by dt by dx by dt. So which is equal to dy by dt का मतलब है y को with respect to t डिफरेंशिएट करना है. ओके okay? So y को with respect to t डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, a टाइम्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन sin t डिवाइडेड बाय dx by dt a टाइम्स t का डिफरेंशिएशन 1 sin t का डिफरेंशिएशन cos t. So a कैंसिल हुआ, so sin t by 1 plus cos t is the answer. So sin t को आप चाहे तो 2 sin t by 2 cos t by 2 लिख सकते हैं. 1 plus cos t को 2 cos square t by 2 बोल सकते हैं. So sin t by 2 by cos t by 2 is tan t by 2. Is it clear?
x is equal to cos theta plus log tan theta by 2. ट्राई कर सकते हैं. x is equal to a times cos theta plus log tan theta by 2, y is equal to a sin theta. So dy by dx when theta is equal to pi by 4. So इसमें भी सेम चीज है, right? So x is a function of theta, y is also a function of theta. So theta is the parameter. So dy by dx क्या होगा? dy by d theta by dx by d theta. Okay. So dy by d theta क्या है? a cos theta divided by dx by d theta क्या है? a times cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta plus 1 by tan theta by 2 log का इंटू tan theta by 2 का secant square theta by 2 theta by 2 का 1 by 2. So a कैंसिल हो गया. cos theta by minus sin theta plus secant square theta by 2 by tan theta by 2. secant square का मतलब है 1 by cos square theta by 2 divided by tan theta by 2 into cot theta by 2. इसका मतलब into cos theta by 2 by sin theta by 2, right? into 1 by 2. So एक कैंसिल हो जाएगा. So 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is 1 by sin theta. Okay. So half 1 by 2 sin theta, that is equal to cos theta by LCM लिया तो minus 2 sin square theta plus 1 minus 2 sin square theta plus 1 by 2 sin theta जो है ऊपर चले जाएगा 2 sin theta. So 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. So sin 2 theta by cos 2 theta क्या होगा? tan 2 theta. सिंप्लीफिकेशन ओके है. देखिए सर मैं कुछ गलत किया था क्या? सर वो 1/2 sin थीटा मुझे हम्म, sin थीटा आएगा. मैं कुछ गलत किया था क्या? यस सर, क्योंकि 2 वो 2 नहीं होगा. 2 तो हमने यूज कर लिया ना sin 2 थीटा. ये ओके ओके sin 2 थीटा यूज 2. कर लिया ना आपने शायद. यस सर. ओके कहाँ यूज किया? ये 2 में यूज कर लिया ना मैंने. सो सिर्फ यस 1 बाई सर. साइन थीटा होगा. सॉरी. हाँ. सो cos थीटा बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऊपर साइन थीटा चला जाएगा, राइट? सो 1 minus sin square theta is cos square theta. So cos theta into sin theta by cos square theta. cos theta कैंसिल हुआ. सिर्फ tan theta है, tan 2 theta नहीं है. ओके यस सर. ओके सिर्फ एक 2 चेंज करने से tan 2 theta से आंसर tan theta हो गया. गुड. So what is dy by dx when theta is equal to pi by 4? So आपका dy by dx जो है tan theta है. So when theta is equal to pi by 4, so this is also when theta is equal to pi by 4. आप substitute किया तो theta equal to pi by 4, tan pi by 4 is 1. Okay. Is it clear?
So ऐसे दो क्वेश्चंस देता हूँ, want you to do the questions. So x is equal to a sin 2t times 1 plus cos 2t. Y is equal to b cos 2t into 1 minus cos 2t. Find dy by dx. ये क्वेश्चन है. X is equal to 3 sin t minus sin 3t. Y is equal to 3 cos t minus cos 3t. Find dy by dx at t is equal to pi by 3. ये दोनों ट्राई करिए. Sir, my Zoom is ending meeting automatically. ट्राई करिए. ये किसी का हुआ बेटा? कुछ दिक्कत हो रहा है बेटा या चल रहे हैं मतलब क्वेश्चंस? So dy by dx is equal to
dy by dt by dx by dt। तो चाहे तो आप dy by dt अलग सा, dx by dt अलग सा फाइंड कर सकते हैं। So dy by dt is equal to b times, this is u into v. So cos 2t times 1 minus cos 2t का डिफरेंशिएशन sin 2t into 2 प्लस 1 minus cos 2t into cos 2t का डिफरेंशिएशन minus 2 sin 2t, that is equal to b times 2 sin 2t cos 2t minus 2 sin 2t plus 2 sin 2t cos 2t, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू b टाइम्स, अगर 2 sin 2t सब में है कॉमन लिया तो क्या बचे, cos 2t प्लस cos 2t, 2 cos 2t माइनस 1। इज इट क्लियर? यहाँ तक ओके है? Yes, sir. So next dx by dt, so a times sin 2t into cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t into 2 प्लस 1 प्लस cos 2t into sin 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t into 2 a times minus 2 sin square 2t plus 2 cos 2t plus 2 cos square 2t, that is equal to a times 2 कॉमन लिया तो सब में cos square 2t minus sin square 2t, जिस cos 4t plus cos 2t, ओके, दैट इज इक्वल, अगर सिंप्लीफाई करना है तो cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, 4t minus 2t is 2t by 2 is t, that is equal to 4a cos 3t cos t, ओके। सो अगर यहाँ आप करना है तो 2b sin 2t का मतलब 2 sin t cos t हो जाएगा ना, सो 2 sin t cos t into 2 cos 2t minus 1, सब एक दूसरे को एक से एक डिवाइड करना है। सो डिवाइड किया तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, सो dy by dx is equal to 4b sin t cos t into 2 cos 2t minus 1 divided by 4a cos 3t into cos t, 4 4 कैंसिल होगा, cos cos कैंसिल हुआ, so sin t into 2 cos 2t minus 1 by cos 3t, okay। मैं सही किया हूँ क्या या कहीं गलती हो गया मेरा इस बार में? सर आंसर क्या है? आंसर सही है क्या या गलत हो गया? एक्चुअली ये वाला सिंप्लीफिकेशन ठीक ठाक रहा था, यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया तो बेटर होते थे। एक्चुअली 2 sin 2t cos 2t 2 sin 2t cos 2t, ये भी sin 4t है, ये भी sin 4t है ना, Yes, sir. ये दोनों को 2 sin अगर मान लीजिए 4t लिखते हैं,
सो क्या होगा 2b इंटू साइन 4t माइनस साइन 2t होगा ना। मतलब ये सिंप्लीफिकेशन भी कुछ गलत नहीं है, बट दिस इज ए बेटर सिंप्लीफिकेशन। 2b इंटू साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2। ठीक है, अब अच्छे से कैंसिल हो रहे चीजें। अब कैंसिल हुआ तो क्या होगा, 4 4 कैंसिल हो गया, b बाई ए dy by dx is equal to, so cos 3t कैंसिल हो गया, sin t by cos t is tan t। ये इजी लग रहा है ना। यस सर। ये वाला सिंप्लीफिकेशन भी थियोरेटिकली सही ही होना चाहिए, ठीक है, बट इस पर मतलब इतना अच्छा सा देखने में इतना अच्छा सा नहीं है ये। Is it clear? So b by a tan t will be the answer। ये सर सिंप्लीफिकेशन सेकंड का आंसर -1/√3 है क्या? सेकंड का आंसर -1/√3। -1 बाई dy बाई dx क्या आया, cot 2t आया। हाँ सर। ठीक, -1/√3 सही है। से पैरामेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कैसे करना है। So this is about differentiation of parametric functions। और 2 क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कर लीजिए, ठीक है। So questions, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, find dy by dx। x is equal to sin cube t by root of cos 2t, y is equal to cos cube t divided by root of cos 2t, find dy by dx। ये दोनों ट्राई कर लीजिए क्वेश्चंस। अगर कुछ आगे गया तो बोलिए, ठीक है।
कुछ हो रहा है बेटा? यस सर, हो गया पहला वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ। आंसर क्या आया? tan 3 थीटा बाई 2। ठीक। ठीक है, मैं भी करके देखता हूँ। सो फर्स्ट dy by dx sorry. So dy by dx is equal to dy by d theta by dx by d theta. Okay. So dy by d theta क्या होगा? 2 cos theta minus cos 2 theta into 2 divided by minus 2 sin theta plus sin 2 theta into 2. So 2 cancel कर लिया तो cos theta minus cos 2 theta divided by sin 2 theta minus sin theta. So cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2. Sin c minus sin d, 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2, 2 2. So tan 3 theta by 2 आना चाहिए। आया किसी का? So next second question का first dy by dt is equal to u by v फॉर्म में है, so cos 2t तो सेकंड क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है ना। सो शैल वी गो फॉर log to do the differentiation easily? So instead of directly differentiating, मैं क्या करता हूँ, log x is equal to log of sin cube t by root cos 2t, that is equal to log of sin cube t 3 log sin t minus रूट जो है वो पावर हो जाएगा log cos 2t
इसको डिफरेंशिएट करना इजी लगेगा ना आपको. So if you differentiate both sides with respect to x, 1 by x into dx by dt is equal to 3 by sin t into cos t minus half 1 by cos 2t minus sin 2t into 2. 2 कैंसिल हो गया. So 3 cot t plus sin 2t by cos 2t is tan 2t. So dx by dt is nothing but x times 3 cot t plus tan 2t. फॉलो कर रहे हैं. यस सर. इजी लग रहा है ना आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से, u by v करने से. So similarly log y is equal to 3 log cos t minus half log cos 2t होगा. So 1 by y dy by dx is equal to 3 by cos t into minus sin t minus half into 1 by cos 2t into minus sin 2t into 2. 2 कैंसिल हो गया. minus 3 tan t sin t by cos t is tan t minus into minus plus हो गया tan 2t. Okay. So dy by dx is equal to y times tan 2t minus 3 tan t. So dy by dt है ये, sorry, dy by dt. So dy by dx क्या होगा? This by this 2 by 1 होगा. So y times tan 2t minus 3 tan t divided by x times 3 cot t plus tan 2t. ओके है ये. चाहे तो सब कुछ t में अगर कन्वर्ट करना है तो y by x जो है cos क्यूब t by sin क्यूब t हो जाएगा which is cot क्यूब t. वो चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y by x के प्लेस में cot क्यूब t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. Is it okay? यस सर. अगर आप चाहिए तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, जैसा ये वाला टर्म्स है ना, ये दोनों को आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस विल टर्न आउट टू बी अ वेरी इजी एक्सप्रेशन. सो tan 2t का फॉर्मूला क्या है? 2 tan t by 1 माइनस tan स्क्वायर t. मैं t को tan को t लिख रहा हूँ. ओके, माइनस 3t बाय 3 बाई टी प्लस 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर. सही है क्या नहीं? सो एलसीएम लिया तो क्या होगा? 2t माइनस 3t प्लस 3t क्यूब. 2t माइनस 3t माइनस टी प्लस 3t क्यूब बाय 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर. ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर t ऊपर चले जाएगा. दैट इज इक्वल टू एक t कॉमन लिया तो एक माइनस टी कॉमन लिया तो माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. ओके,
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ओके क्या नहीं? हाँ सर। सो इसको आप y बाय एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, y बाय एक्स क्या है? कॉट क्यूब टी, राइट? इसका मतलब 1/t क्यूब है ना ये। सो इसके आप 1/t क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो पूरा, सो 1/t क्यूब इंटू माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 - 3t² बाय 3 - t², एक t नीचे रख जाएगा, राइट? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 - 3t² बाय 3t - t³। सो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपके पास फॉर्मूला है tan 3 थीटा इज इक्वल टू, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है? सेम लग रहा है? थोड़ा सा रेसिप्रोकल है। 3t - t³ बाय 1 - 3t² इज tan 3 थीटा, 3t - t³ बाय 1 - 3t²। So -1 by tan 3 theta. So minus cot 3 theta is the effective answer. मतलब इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। Is it okay? Yes sir. Is it clear? Yes sir. So हम अभी समझ में आया आपको how to differentiate one function with respect to other function and how to differentiate parametric functions. Okay? So methods of differentiation का last topic है second order differentiation और higher order differentials. क्या है? Higher order differentiation. हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का यही मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। मान लीजिए ऐसा करना है, वो कैसे करते हैं? बेसिक फंक्शंस का डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना तो बहुत इजी है, राइट? अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इफ यू वांट डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, कैसे करेगा? तो फर्स्ट आप dy बाई डी एक्स फाइंड करिएगा, राइट? 2 sin x इंटू cos x विच इज sin 2x। सो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, सही है कि नहीं? d square y by dx square is d by dx of dy by dx, which is equal to d by dx of dy by dx। क्या होगा? d by dx of sin 2x। फिर डिफरेंशिएट करना है, so 2 cos 2x। इज इट क्लियर? सो d square y by dx square का मीनिंग क्या है? d by dx of dy by dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो dy by dx के एक और बार
डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? So y is equal to secant x plus tan x. Find d square y by dx square. करके दिखा सकते हैं? ट्राई करिए। Next question, y is equal to e power 4x sin 3x. Find d square y by dx square. दोनों questions try करिए। सॉल्व कर रहे हैं? हाँ सर। फर्स्ट का आंसर cos x by 1 minus sin x का होल स्क्वायर आया। फर्स्ट का आंसर cos x by 1 minus sin x का होल स्क्वायर। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर पा रहे? नहीं सर। सो सेकंड का आंसर
e power 4x into 7 sin 3x plus 24 cos 3x आ रहे हैं। यहाँ तक अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो देखिए, शांत नॉट गेटिंग, कौन सा फर्स्ट वाला है क्या सेकंड वाला? तो देखिए फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x, tan x का secant square x, ओके। secant x कॉमन लिया तो अगेन secant x plus tan x, this is dy by dx। आंसर साइन एंड कॉस में दिया है, so अगर चाहिए तो साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। so 1 by cos x into 1 by cos x plus sin x by cos x, 1 plus sin x by cos x, 1 plus sin x divided by cos square x, cos square x is 1 minus sin square x, so 1 minus sin square x is 1 plus sin x into 1 minus sin x, cancel हुआ तो 1 by 1 minus sin x will be the answer, so dy by dx is equal to 1 by 1 minus sin x, so d square y by dx square क्या होगा? 1 by something का minus 1 by something square into 1 minus sin x का differentiation minus cos x, minus minus cancel हो गया, so cos x by 1 minus sin x का whole square is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन का हुआ है ये वाला आंसर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हायर ऑर्डर differentiation of parametric functions. For example, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta जो हम ऑलरेडी किए हैं, y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, find d square y by dx square, theta is equal to pi by 2। So parametric functions में there is a slight, ठीक है, slightly tricky process when you want to do d square y by dx square। देखिए dy by dx is equal to हमारा लॉजिक के हिसाब से dy by d theta by dx by d theta, ओके। सो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सो ये प्रोसेस मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी बीन डन। dy by dx जो है हमको क्या आया, tan 3 theta by 2 आया है, यहाँ तक क्लियर है? अब मान लीजिए एज यू कैन सी dy by dx is a function of theta, so अगर मान लीजिए d square y by dx square चाहिए, by definition this is d by dx of dy by dx। As you can see dy by dx is not a function of x, dy by dx is a function of theta, so directly आप x के साथ differentiate नहीं कर सकते, so इसको मैं क्या करता हूँ, d of dy by dx मैं separate करता हूँ, dx को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे d theta लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विथ d theta। So dy by dx is tan 3 theta by 2, d of tan 3 theta by 2 by d theta divided by into d theta by dx का मतलब divided by dx by d theta।
ठीक है, you can think of it as multiplying and dividing with d theta, और मैं ऊपर नीचे d theta से डिवाइड कर रहा हूँ, वैसा भी सोच सकते हैं आप, d by d theta of dy by dx by dx by d theta. So tan 3 theta by 2 का secant square 3 theta by 2 into 3 by 2 divided by dx by d theta. ये आप प्रीवियस जब dy by dx फाइंड करते हैं, dy by dx by d theta तो ऑलरेडी फाइंड किया होगा आपने. So dx by d theta is this 2 sin theta by 2 cos 3 theta by 2. So 2 sin theta by 2 cos 3 theta by 2. Okay. So that is equal to 3 by 4. Secant square 3 theta by 2 का मतलब 1 by cos square 3 theta by 2. So sin theta by 2 to cos cube 3 theta by 2. So this is the answer. So जब d square by dx square करते हैं, you have to divide with an extra dx by d theta. समझ रहे? So जो भी हायर ऑर्डर है, so dy by dx जो थीटा के टर्म्स में आया, इसको तो आप डिफरेंशिएट करिएगा, बट इसके साथ एक्स्ट्रा dx by d theta से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर d क्यूब y by dx क्यूब करना है, तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, d by dx ऑफ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. तो मैं क्या करता हूँ, d ऑफ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बाय d थीटा बाय dx by d थीटा. ओके, सो ऊपर नीचे d थीटा से डिवाइड कर लीजिए, इसका मतलब इसको इफेक्टली थीटा से डिफरेंशिएट करना है, बट एक्स्ट्रा एक dx by d थीटा से फिर डिवाइड करना पड़ेगा. सो एट एवरी स्टेज जो भी प्रीवियसली आते हैं उसको थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट करके से एक्स्ट्रा एक dx by d थीटा से हर स्टेप में डिवाइड करते रहना है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एक क्वेश्चन करके विल स्टॉप. x is equal to a times theta minus sin theta. Y is equal to a times 1 plus cos theta. Find d square y by dx square. ये करके दिखा सकते हैं. So first आप dy by dx फाइंड कर लीजिए. You get something in terms of theta. So next step में उसको d theta से डिफरेंशिएट करके एक्स्ट्रा एक dx by d theta से डिवाइड करना पड़ेगा. ट्राई करिए.
कुछ हुआ बेटा इसका? सो फर्स्ट dy बाई डी थीटा फाइंड कर रहा हूँ, a टाइम्स माइनस साइन थीटा हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। सो dy बाई dx क्या होगा? a इंटू माइनस साइन थीटा बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। So minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 by 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. 2 sin theta by 2 sin theta by 2 cancel हो गया, minus cot theta by 2 फर्स्ट स्टेज है। अब d square y by dx square is nothing but d by d theta of dy by dx by dx by d theta, that is equal to minus cot theta by 2 का differentiation minus of minus cosecant square theta by 2 into 1 by 2 divided by dx by d theta a times 1 minus cos theta, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो 1 बाई 2 ए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सेपरेटली क्या होगा 1 बाई 4 ए साइन पावर 4 थीटा बाई 2 इज द आंसर। इज इट ओके और नॉट? समझ में आया? Yes, sir. So next question, x is equal to cos t plus log tan t by 2, y is equal to simply sin t, find d square y by dx square when t is equal to pi by 4, निकालिए। हुआ क्या बेटा?
बन गए या करना है मुझे? आंसर 2√2 आना चाहिए। So dy by dt is equal to cos t minus sin t plus sin t by 2 cos t by 2 ऊपर चला जाएगा, 1 by cos square t by 2 1 by 2, एक cos t by 2 cos t by 2 कैंसिल हुआ, minus sin t plus 1 by 2 sin t by 2 cos t by 2 is sin t. So 1 minus sin square t by sin t cos square t by sin t हुआ. So dy by dx is equal to cos t by cos square t by sin t. tan t हो गया, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. So d square y by dx square is equal to d square y by dx square is equal to tan t का secant square t, इसको t के साथ डिफरेंशिएट किया, डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा क्या किया, dx by dt से आप डिवाइड करना है हर स्टेज में. सो cos स्क्वायर t बाई sin t जो है ऊपर चला जाएगा, सो sin t बाई cos पावर 4t हो जाएगा. सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर at t is equal to pi by 4 1 by रूट 2 by 1 by 4 हो जाएगा. सो 2√2 आएगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर. सो आपका डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ. ठीक है, सारा मॉडल्स कंप्लीट हो गया आपका. सो आप RS अग्रवाल करना शुरू करना है, राइट? ठीक है, RS अग्रवाल कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी. नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर करके हम आगे जाएंगे. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में. ओके ओके सर. ठीक है बेटा, आपका कुछ डाउट्स है या शैल वी कंक्लूड इट हियर? अगर कुछ डाउट्स पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं. किसी का कुछ डाउट्स है? हाँ सर, एक है. हाँ, कैसे स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. कर लीजिए. Let omega be the complex cube root of one unity, okay, and P is a Mann matrix such that Pij is omega power ij, P square not equal to 0, then N is equal to ठीक है बेटा, एक मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट्स जो है, ठीक है, ओमेगा है ना, ये 1 1 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, 1 3 एलिमेंट, ऐसा होता है ना एलिमेंट्स. यस सर. सो Pij इज गिवन एज ओमेगा पावर i प्लस j. ठीक है, ये डेफिनेशन है. ठीक है, इसका मतलब P11 क्या होगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि ये 1 1 एलिमेंट है ना, ओमेगा पावर 1 + 1. ओके, यहाँ क्या होगा, ओमेगा पावर 1 3. + 2, ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 4, ऐसा करके जाते रहेगा, राइट? यस सर. बट ओमेगा का प्रॉपर्टीज क्या है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक वाला एक प्रॉपर्टी है. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दिस इज द अदर प्रॉपर्टी. ओके, यस सर. सो मेरा मैट्रिक्स जो है देखने में कैसा होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया,
ओके, हाँ सर। ओमेगा पावर 4 क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब मैं निकाल सकता हूँ। हम्म, इसके बाद नेक्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर होगा क्योंकि ओमेगा पावर 5। नेक्स्ट फिर क्या आएगा, फिर ओमेगा क्यूब आएगा विच इज 1। इसके बाद फिर ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, 1 आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आते रहेगा। नंबर्स समझ में आ रहे? एन बाय एन मैट्रिक्स है ना, एन एलिमेंट्स आएगा। ओके, समझ में आ रहे? एंड हाँ नीचे ये ओमेगा स्क्वायर है ना, ये नीचे क्या होगा, ओमेगा क्यूब होगा क्योंकि ये 2 1 एलिमेंट है। मतलब इस तरह भी सेम है, ओमेगा स्क्वायर के बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा क्यूब, फिर 1 आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आते रहेगा सेकंड लाइन में। ओके क्या नहीं, इसलिए ओमेगा का पावर्स बढ़ते बच जा रहे हैं। बट आफ्टर ओमेगा क्यूब तो 1 है ना, तो 3 के बाद वो फिर वापस बैक जंप करेगा। ये यह एलिमेंट क्या होगा, ये 3 1 वाला एलिमेंट है, ओमेगा पावर 3 प्लस 1 ओमेगा पावर 4 ओमेगा होगा। ओमेगा, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ऐसा करके मतलब ये दिस इज हाउ द मैट्रिक्स लुक लाइक। ओके, क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। ये P है, क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब P इंटू पी कर रहा हूं मैं। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई P विथ P। ठीक है, सो P स्क्वायर फाइंड करेंगे, P ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा सो ऑन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सो ऑन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सो ऑन, ऐसा इस तरह भी जा रहे हैं, ऐसा पूरा जा रहे हैं, राइट? दिस इज P इंटू फिर इसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है क्या नहीं? हाँ सर। जब मल्टीप्लाई करते क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो क्या आएगा देखिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा। ओमेगा, बहुत अच्छा है, प्लस 1 इंटू ओमेगा 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 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 इंटू 1 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा कितना है, ओमेगा ओमेगा। स्क्वायर, राइट? ये तीनों को ये तीनों से मल्टीप्लाई करने से ये वाला आया, हाँ सर। ये कितना है, ये तो 0 हो गया ना। हम्म। नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, फिर वही आएगा हाँ 0, ऐसा करके 3 3 करके मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आते रहेगा ना, तो इफेक्टिवली यहाँ क्या आएगा, 0। 0 आएगा इफ ये जो लाइन है इसमें 3 3 का अच्छे से ग्रुपिंग बने। अगर लाइन में अच्छे से 3 3 का ग्रुपिंग बन रहा है तो तब 3 3 का ग्रुपिंग में 0 0 होते रहेगा, तो इफेक्टिवली 0 आएगा, राइट? समझ रहे? हाँ बट मान लीजिए ये वाला जो है कितने एलिमेंट्स हो गए, n होता है ना, हाँ। इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 देन पूरा 0 आते रहेगा, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 तब 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि कुछ आइटम बच जाएगा। मान लीजिए 2/2 है, सिर्फ 2/2 ले रहा हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 3 एलिमेंट्स मिलके 0 हो रहे हैं ना। ओके है क्या नहीं? हाँ सर। सो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा अभी, पी स्क्वायर 0 होना है तो वो n जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो तो 0 नहीं आएगा। 0 नहीं होगा। शायद आपका ऑप्शंस में आप देख सकते हैं बहुत सारा मल्टीपल। नंबर्स 3 का मल्टीपल्स होगा, एक ही नंबर 3 का मल्टीपल नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। हाँ सर। सही है कि नहीं? यस सर। तो आंसर क्या है, 55 है क्या?
हाँ सर 55, 56 और 58। ओके तीनों हाँ मोर देन वन ये ऑप्शन तो राइट है क्या? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहे? ओके, और कुछ डाउट्स है? नो सर। ओके गुड, सो लेट अस कंक्लूड हियर। ठीक है, सो आप RS अग्रवाल में क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, बाय।